Hello everyone, welcome back. My name is GD Sharma and you are with me on my channel Learn with Dr. GD Sharma. As we are running a lecture series on English subject LT Grade UPPSC, so our today's topic is from the syllabus of English section A, and today we are dealing with some trends and some movements of literature, that is Modernism, Expressionism, Surrealism and Impressionism. But before we go ahead, please make sure you subscribe the channel if you are watching this video for the first time, so that you don't miss these videos in future. First of all, let's take modernism. Actually, modernism is an umbrella term that covers many areas and that particularly applies to all the creative arts, fiction, drama, music and architecture. As regards the starting point of this modernism, so there is no authoritative, there is no official declaration about the starting point of this ism. However, if we have to describe something, if we have to ascertain something, so late 19th century or early 20th century can be said to have been the starting point of this ism. And it continues, it is supposed to have been continued up to the advent of Second World War. यही कहा जाता है कि लेट 19th सेंचुरी से और वर्ल्ड वार सेकेंड के स्टार्टिंग पॉइंट तक जो एज मानी जाती है वो हमारी मॉडर्निज्म मानी जाती है. बेसिकली मॉडर्निज्म इज एन एज ऑफ न्यूनेस, क्रिएटिविटी, अवांट-गार्ड टेंडेंसीज, freedom of expression in all kinds of spheres of literature. So the artists or literateurs, poets and fictionists or authors of this age tried to liberate themselves, free themselves from all kinds of restrictions in the expressions of their poetic truth. As far as literature in modernism is concerned, so modernism is a breaking away from the literary rules, established rules and regulations of the past age. It is a breaking away from all the conventions, all the bondage of the previous age. And in it there are many isms like Surrealism, Expressionism, Impressionism, Vorticism, Imagism and many more. New technologies like aviation, telephony, electricity, they affected the new thoughts in all the poets and authors. Added to it, the revolution in physics, anthropology and psychology, they added or they created a new dimension for the poets to pursue after philosophy, which they expressed in their writings. जहाँ हर फील्ड में, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, कंप्यूटर का फील्ड हो, एस्ट्रोनॉमी का फील्ड हो, फिलोसफी का फील्ड हो, फिजिक्स का फील्ड हो, किसी भी फील्ड में जहाँ पर साइंटिस्ट नए से नई चीज़ें खोजते जा रहे थे, वहीं पे पोएट्स को, ऑथर्स को, लिटरेटर्स को भी ये लगने लगा कि अपने आप को एक नए तरीके से प्रेजेंट कैसे किया जाए लिटरेचर के अंदर. उसी चीज़ ने, उसी विचारधारा ने एक मॉडर्निज्म को यहाँ पे जन्म दिया. और मॉडर्निज्म में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नई अपनी पोएट्री में, अपनी नॉवेल्स में क्रिएट की. मॉडर्निज्म का, क्रिएटिविटी का, न्यूनेस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट लिटरेचर के अंदर कहीं दिखता है तो नॉवेल्स और पोएट्री के अंदर दिखता है. नॉवेल्स की बात की जाए तो राइटर्स लाइक जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, हेनरी जेम्स, इन्होंने न्यू टेक्निक्स को यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दिया. वो न्यू टेक्निक थी आपकी नॉन क्रोनोलॉजिकल प्लॉट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, ब्रेकिंग ऑफ द टाइम्स, और आपके प्लॉट्स को लीनियर प्लॉट की जगह वो रैंडम प्लॉट्स, रैंडम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यूज करना शुरू कर दिया. नॉवेल्स में टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे. जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ के हाथ में नॉवल का जो स्पैन था बहुत ज़्यादा वो छोटा कर दिया टाइम के मामले में. इसमें बहुत सारे चेंजेस थे. कई बार तो ऐसा होता था कि आपके बहुत छोटा प्लॉट एक लार्ज एक्सपेरिमेंट, लार्ज नरेशन में उसको डिस्क्राइब किया गया है, या फिर लार्ज एक इवेंट को बहुत कम टाइम में उसको एक्सप्रेस किया जाने लगा. अनलाइक द ट्रेडिशनल प्लॉट्स विच हैड देयर लीनियर सीक्वेंस स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंड, मॉडर्निस्ट फिक्शन में देयर वाज नो सच काइंड ऑफ थिंग. नॉवल कुड स्टार्ट एनीवेयर, कुड एंड एनीवेयर. नॉवेल्स में नरेशन की अगर बात की जाए तो अनलाइक ट्रेडिशनल नरेशन, ओमनिशिएंट नरेशन की जगह देयर वाज अ ब्रेक इन द नरेटिव फ्रेम्स. कहीं से भी कोई भी नरेशन स्टार्ट हो जाती है विदाउट एनी वार्निंग और फोरग्राउंडिंग.
ना कोई इंट्रोडक्शन, ना कोई फोरग्राउंडिंग, कहीं से भी कोई सी नरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको वर्जीनिया वुल्फ की मिसिस डैलोवे में, जेम्स जॉयस की पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन में, या फिनेगन्स वेक में, या यूलिसिस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्लॉट की बात की जाए तो ट्रेडिशनल प्लॉट्स जो कि नॉवेल्स में देखा जाता था, देयर वाज मोर एम्फेसिस ऑन प्लॉट एंड द सेकेंड एम्फेसिस वाज ऑन कैरेक्टर्स। But in these novels, in the modernist novels, the main focus was on the character, on character's psyche or the inner life of the character, what the character is undergoing, what is his unconscious thought process or subconscious thought process. कहानी ज़्यादा मैटर नहीं करती थी, ज़्यादा मैटर जो करता है वो आपका कैरेक्टर्स और कैरेक्टर का डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनर डेवलपमेंट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिसेस डैलोवे में मिल जाएगा। मेन प्लॉट इज ऑफ वन डे, स्टोरी इज वेरी सिंपल, बट द नरेटिव टेक्स प्लेस इन द साइकी ऑफ क्लैरिसा। सारा जो नरेशन है वो क्लैरिसा के सबकॉन्शियस माइंड में ही हो जाता है, एक्चुअल इवेंट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं है। यही मॉडर्निस्ट नॉवेल्स की एक खास बात होती है। अगर पोएट्री की बात करते हैं तो पोएट्री में एक्सपेरिमेंट्स के लिए, न्यूनेस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए द क्रेडिट गोज टू 3 जाइंट्स, टी.एस. इलियट, विलियम बटलर येट्स और इज़रा पाउंड। इज़रा पाउंड ने इमेजिस्ट पोएट्री की, इमेजिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की। उसने कहा कि भाई पोएट्री शुड बी एज सिंपल एज दैट, द इमेज शुड बी एज हार्ड एज दैट। कोई वेगनेस नहीं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमेज नहीं यूज करनी, इमेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर टर्म्स में होनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन मॉडर्निज्म इज विलियम बटलर येट्स। येट्स फ्रेंच सिंबोलिज्म को इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लेकर के आया। उसी के साथ सेल्टिक रिवाइवल, फोक लिटरेचर, फोक रिवाइवल, सिंबोलिज्म इन एवरीथिंग, माइथोलॉजिकल सिंबोलिज्म, हिज ओन पर्सनल सिंबोलिज्म उसने यूज की। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको उसकी एक सेकेंड कमिंग में दिख जाएगा, जिसमें वो शुरुआत के लाइन्स में कहता है, टर्निंग एंड टर्निंग इनटू द वाइडिंग जायर, द फॉल्कन कांट हियर द फॉल्कनर। तो फॉल्कन, फॉल्कनर, जायर, ये उसके कुछ पर्सनल सिंबल्स हैं। बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम में या फिर बाइजेंटियम सेपरेट पॉइंट्स में, बाइजेंटियम उसका कल्चरल माइथोलॉजी का एक सिंबल है, जायर उसका एक साइक्लिक मूवमेंट ऑफ सिविलाइजेशन का एक सिंबल है। द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मॉडर्निज्म इज अनडाउटेडली टी.एस. इलियट. He should be given the credit of bringing many isms, many things into English literature. चाहे वो interest in metaphysical poets and metaphysical conceits. T.S. Eliot's की पोएम में आपको metaphysical conceits का बहुत ज़्यादा यूज मिल जाएगा, चाहे वो लव सॉन्ग ऑफ जे प्रिफ्रॉक या वेस्टलैंड में आप देख सकते हो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल वेस्टलैंड ही है, जिसमें बहुत सारी इसने मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स, मेटाफिजिकल इमेजेस यूज किए हैं। Second thing, interest in tradition. He says in his tradition and individual talent that poets of modernism should view themselves in the light of tradition. Third important characteristics is the interest in old mythology, old cult, old symbolism. वेस्टलैंड उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें कि बहुत सारे एल्यूजन्स को, बहुत सारे पोएटिक एल्यूजन्स को उसने एक छोटे पैमाने पर यूज़ किया है। क्रिटिक आई.ए. रिचर्ड्स ने उस वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज़ और पोएटिक शॉर्ट हैंड तक कह डाला। पोएटिक शॉर्ट हैंड इसलिए कह दिया क्योंकि उस छोटी सी पोएम में उस बहुत सारी एल्यूजन्स का उसने यूज किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टी.एस. इलियट इज टू गिव ड्रामा इट्स न्यू लाइफ इन द फॉर्म ऑफ पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा को एक नई डेफिनेशन, एक नया जीवन टी.एस. इलियट ने ही दिया था। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका मर्डर इन कैथेड्रल मिल सकता है। सो मॉडर्निज्म इज सेट टू सम अप डिफरेंट टेंडेंसीज एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑब्सक्योरिटी, पर्पजफुल ऑब्सक्योरिटी, क्लासिक एल्यूजन्स और डिफिकल्ट एल्यूजन्स, यूज ऑफ मेटाफिजिक्स और मेटाफिजिकल कंसीट्स, सिंबोलिज्म, इमेजिज्म, पेसिमिज्म, chaos, fragmentation, human psyche, interior monologue, free verse, etc. Our next topic is Impressionism.
The very term Impressionism comes from French painter Claude Monet's painting Impressions. इस तरह की पेंटिंग को बनाने के पीछे उसका मकसद ऑब्जेक्ट्स का इम्प्रेशन को शो करना, ना कि ऑब्जेक्ट्स को. In other words, his aim was to render the effect of light on the objects rather than objects themselves. In literature, the term is used to indicate the emphasis on subjective impressions over objective facts. The literary theory of Impressionism was developed by Ford Madox Ford in his essays in 1913 on Impressionism, and he practiced this theory in his novel Good Soldier in 1915. उसका एम क्या था? उस नोवेल के अंदर कैरेक्टर्स की इनर लाइफ को शो करना रादर देन एक्सटर्नल रियलिटी, एक्सटर्नल प्लॉट. द टेक्निक और द लिटरेरी थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनिज्म वॉज यूज्ड टू शो और एम्फेसिस ऑन द इनर लाइफ ऑफ द मेन कैरेक्टर रादर देन द एक्सटर्नल रियलिटी और एक्सटर्नल प्लॉट. मेन जो फोकस होता है राइटर का वो किसी कैरेक्टर की या फिर मेन कैरेक्टर की इनर लाइफ को रिवील करना, डिवेलप करना होता है, ना कि स्टोरी को बताना. इसके और अच्छे एग्जाम्पल्स आपको वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डेलोवे, जेम्स जॉयस का द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, या यूलिसिस, या डोरोथी रिचर्डसन के यहाँ आपको मिल सकता है. पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन में जो स्टीफन हीरो है उसका कैरेक्टर को डेवलप किया है इसने, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर रादर देन द प्लॉट और द मेन स्टोरी. वही इम्प्रेशनिज्म होती है. नाउ लेट अस कम टू एक्सप्रेशनिज्म. द टर्म एक्सप्रेशनिज्म वॉज कॉइन्ड इन द अर्ली 20th century, फर्स्ट इन आर्ट, देन इन लिटरेचर, थिएटर एंड सिनेमा. इट कैरेक्टराइज्ड बोल्डनेस, डिस्टॉर्शन एंड फोर्सफुल representations of emotions. As a movement, it flourished in Germany in the wake of the revival of interest in the writings of Friedrich Nietzsche. The epitome of Expressionism in German cinema was Robert Wien's The Cabinet of Dr. Caligari. The term Expressionism was probably first used by Vauxhall, who used it as a reaction against realism and who aimed it to show inner psychological realities. एक्सप्रेशनिज्म को इंग्लैंड के अंदर लाने का क्रेडिट विंडम लिविस, W.H. ऑर्डन और क्रिस्टोफर इशरवुड को जाता है. विंडम लिविस was chiefly influenced by फ्रेडरिच नीट्शे और इसी से प्रभावित होकर के उसने एक नई मूवमेंट एक्सप्रेशनिज्म के जैसी ही इंग्लैंड के अंदर शुरू की जिसका नाम था वॉर्टिसिज्म. एक्सप्रेशनिज्म से और फ्रेडरिच नीट्शे के वर्क से प्रभावित होने वाले अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर और जो ऑथर्स थे उसमें ऑथर बर्टोल्ड ब्रेच का नाम आता है, यूजीन ओ'नील का नाम आता है, एल्मर राइस का नाम आता है. इन सारे लोगों ने अपने वर्क्स में, अपने ड्रामाज में जो इमोशंस को यूज़ किया वो हार्ड इमोशंस या फोर्सफुल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इमोशंस को यूज़ किया. एक्सप्रेशनिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको यूजीन ओ'नील के हेरी एप से मिल जाएगा. हेरी एप में जब बॉब स्मिथ जो यंक है उसको जब मिलरेड डगलस हेरी एप कह के एक हीनियस जानवर कह के बुला देती है, सो बॉब स्मिथ स्टार्ट्स अंडरगोइंग अ साइकोलॉजिकल ट्रेबुलेशन. अंदर ही अंदर उसके बहुत ज़्यादा हलचल मचती रहती है एंड देन ही स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ रियल एप, रियल चिंपैंजी, रियल गोरिल्ला, और उसकी वजह से ही वो सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है. सो दैट वॉज द फोर्सफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज इमोशंस. जो उसके इमोशंस थे अंदर उनका एक बहुत ही बोल्ड, बहुत ही फोर्सफुल रिप्रेजेंटेशन बाहर उसका निकला. The last topic is Surrealism. As a movement, Surrealism was originated in France in 1920s. It was developed of Dadaism. As an art movement, it was popularized by Salvador Dali. The movement characterized the workings of the unconscious mind and to synchronize these workings with the conscious mind. The work originates or develops non-logically or rather illogically. The work basically shows the working of the unconscious mind. Surrealism was an attempt to capture the mind's deepest and most unconscious aspects in painting. Though the term superrealism or surrealism was coined by G. Apollinaire,
but it was Andre Breton who recommended that human mind should be liberated from all kinds of reason and logic. Andre Breton was chiefly influenced by Sigmund Freud. Sigmund Freud's theories of unconscious and its relation to the dreams. Andre Breton called Surrealism to be psychic automatism. बाकी ऑथर्स जिनकी राइटिंग्स में सरियलिज्म का इम्पैक्ट दिखता है वो हैं एंटोनिन आर्टोड, जीन जेनेट, यूजीन यूनेस्को, सैमुअल बेकेट, डिलेन थॉमस, जेम्स जॉयस, मार्टिन एमिस एंड जॉर्ज बार्कर. As unconscious is a source of creative energy for these writers, so they explore the territories of conscious or unconscious mind. They expose the private chaos and hell in their writings. They record dream in its non-linear or even often abrupt sequence. अपनी राइटिंग्स में ये सारे राइटर्स माइंड्स के उन सारे प्राइवेट कियोस को, सारी फ्रस्ट्रेशन को, सप्रेशन को, इलॉजिकलिटी को, कियोस को एक्सप्रेस करते हैं. रिजल्ट आपको डिलेन थॉमस की पोएम में मिल जाएगा जो कि बिल्कुल ऑटोमेटिक राइटिंग है. जैसे उसके माइंड में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो उसको एज इट इज एक्सप्रेस कर रहा है. सो दैट इज ऑल फॉर नाउ. Hope you found this lecture informative and it added something to your present knowledge and cleared some of your doubts. Keep learning, stay motivated. Thank you. And please feel free to like this video and share this video. Thank you.